Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing matrix. In the last class we did few questions and we did inverse of a matrix, definition of inverse of a matrix. Now today we will understand the method how to find the inverse of a matrix. For that we have to understand the concept of elementary operations or transformation of a matrix. This is very important. For that, for finding the inverse of a matrix using elementary operation, we have to understand what is elementary operation. What is elementary operation in matrix? So let us start. First operation in which first elementary operation is we can interchange any two rows or any two columns of a particular matrix. We can interchange any two rows or any two columns of a particular matrix. That means suppose we are having this 3 4 minus 1 2 minus 1 4 7 1 9. Suppose we are having this matrix. I am applying the operation R1 is interchanging to R2, so we can do so. That means we can interchange. That means R1 will be interchanged to R2 means 2 minus 1 4, then 3 4 minus 1, R3 remains unchanged. R3 remains unchanged. Suppose in the same matrix what I have to do, I have to apply the operation C1 is interchanging to C3. In this matrix I have to apply the operation C1 interchange to C3. Then that will give me C1. So C1 C3, this is C3, this is C1. So C3 comes in place of C1. So minus 1 4 9. C2 remains unchanged and C3 will go to C1. This. That means in this matrix applying this operation, लगाना कैसे है क्वेश्चंस में करेंगे, but लगेगा कैसे? If I am applying this operation, what does this mean? This means that I will interchange R1 and R2. If I am applying C1 interchange to C3, then I will apply C1 will be interchanged to C3 like this. This is the interchange of two rows or two columns. Interchange of two rows or two columns. It can be done in 3 by 3, 2 by 2, whatever it is. But now let us do the second operation is Ri goes to constant times Ri. That means I can multiply any row. Multiplication of any row by a scalar. By a scalar या फिर by a number, by a constant I can multiply. That means suppose I am having a matrix 3 2 4 minus 1. We are having 2 by 2 matrix and I want to multiply this R2 by 3. So I can do so. ठीक है? For that we have to do in the right hand side as well. वो हम क्वेश्चन में करेंगे. ठीक है, फॉर दैट. बट लगाना कैसे है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं. लगाना कैसे है, ये ऑपरेशन कह क्या रहा है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है. इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि इफ आई एम अप्लाइंग R2 goes to 3R2, दैट मीन्स R1 remains unchanged and R2 कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 12 and minus 3. दैट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई एनी row by a constant number. Suppose in the same matrix what I am doing, I am applying C1 goes to minus 2 times C1. Then that will give me, this operation will give me what? C1. तो C1 को minus 2 का मतलब हो गया minus 6, 3 into minus 2 is minus 6, 4 into minus 2 is minus 8 and 2 and minus 1 आ गया as it is. This. That means multiplication. This is the operation. This is how to write the operation. जैसे ये Ri goes to constant time that same row. That means R2 goes to 3R2 या फिर we can say C1 goes to minus 2 times C1. This is operation number 2. Now let us come to the third and last operation, and the operation is any row can be added or subtracted with some other row. Any row. That means इसको एग्जांपल से करते हैं. मान लो we are having this 3 2 minus 1 4 7 9 3 1 minus 4. मान लो this is, and I am applying, मान लो मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ. ये वाला क्या लगा रहा हूँ, that R2 goes to R2 plus 2 times R1. मान लो ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ. In this Ri goes to Ri, that means किसी रो को मैं किसी रो से प्लस कर सकता हूँ. किसी भी रो को I can add with any row except that row.
आफ्टर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सम नंबर, और या फिर 2 भी हटा दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे 1 हो जाएगा। यहाँ पर और थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं समझाने के लिए, तो देखो भाई लगाते हैं। दिस विल गिव मी व्हाट, आफ्टर अप्लाइंग दिस विल गिव मी व्हाट, ऑपरेशन है R2 के ऊपर, दैट मींस R1 R3 रिमेन्स अनचेंज। ऑपरेशन है R2 के ऊपर, दैट मींस R1 3 2 -1। अब R2 पे देखो भाई, R2 + 2R1, R2 ये पूरा का पूरा R2 है, R2 + 2R1 लगाना है मुझे, तो R2 है 4 + 2 × R1, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाला ऊपर R1 वाला, तो 4 + 3 × 2, तो 4 + 6 10, और लगा लो 7, ये 7, अब ये 7 इसके थ्रू होगा, तो 7 2 × R1, तो 2 × 2, 2 × 2 इज 4, 7 + 4 इज 11। अब यहाँ पर R2 क्या आ रहा है 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 9 बीच में है प्लस, 2 × उसके कोरेस्पॉन्डिंग R1 वो क्या है -1, 2 × -1, तो 9 - 2 इज 7, तो यहाँ पर आ गया 7। तो दिस इज आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स, दिस देन R3 रिमेन्स अनचेंज, 3 1 -4। So this is the way how to apply R2 goes to R2 + 2R1. Suppose I am taking for column, same for column. Suppose what I am doing, I am writing again some other matrix. Suppose we are having 1 - 3 2 4 7 -1 3 -2 8, and what I am doing, I am applying C1 goes to C1 -3 times C3, मान लो ये लगा रहे हैं हम सपोज को, तो व्हाट दिस विल गिव मी, C1 को चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले C1 में यहाँ पर आ रहा है 1, अगर यहाँ करें तो 1 - 3 × C3, इससे कोरेस्पॉन्डिंग C3 ये रहा 2, तो 3 × 2, तो 1 - 6 दैट इज -5। ये हमें करना नहीं है, ये हमें रफ में करना है, ये बता रहा हूँ समझाने के लिए। 4 अब ये आ गया 4 -3 तो है ही, अब C3 कोरेस्पॉन्डिंग क्या है C3 -1, तो ये हो गया 4 + 3 विल गिव मी 7, और लास्ट में फिर 3, तो यहाँ आ गया 3 -3 × C3, C3 क्या है 8, तो 3 - 24 दैट मीन्स -21, और बाकी C1 पे ऑपरेशन है C2 3 C3 सेम, -3 7 -2 2 -1 8, दैट्स इट। So these are the 3 operations, transformations, same for row, same for column, which we will use in different questions to find the inverse of a matrix. I am coming to the topic, that is inverse of a matrix using elementary operation. For that we need to understand the elementary operation, and these are the 3 elementary operation. One, we can interchange any row or any column first. Second, we can multiply any row or any column by a constant, and third and last, we can apply Ri goes to Ri plus minus constant times Rj, or Ci goes to Ci plus minus constant times Cj। अभी हमने ऑपरेशन लगाना बताया, क्वेश्चन में और समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसके पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी उसके पहले, दैट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है उसके लिए होता क्या है कि सपोज करो मेरे पास 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, एक तीसरी मैट्रिक्स है इस टाइप से, मेरे पास 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन एक तीसरी मैट्रिक्स है, और मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं आर वाला, Ri goes to Ri plus minus constant times Rj. If I am applying constant times, ये constant times इस टाइप से, और I am applying Ri interchanging to Rj, or I am applying the third one, that is Ri goes to some constant times Ri. These are the 3 operations. If some matrix equals to the multiplication of these 2 matrices will give me some matrix, अगर ऐसा ऑपरेशन ऐसा है, ठीक है, और हमें कोई ऑपरेशन लगाना है, तो ऑपरेशन किस तरीके से लगेगा, यहां पर जो C है इस C पर ये ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन C। यहां पर जो A into B है, अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, इफ आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन, दैट मीन्स दिस A ऑपरेशन ऑन A, ऑपरेशन ऑन A लगेगा, बट ये जो B है, B रिमेन्स अनचेंज्ड। When in case of
इन केस ऑफ रो ऑपरेशंस, इन केस ऑफ रो ऑपरेशंस में जब भी ऐसा होगा तो जो एक सिंगल मैट्रिक्स है वो तो चेंज होगी होगी, ऑपरेशन लगेगा, और जो ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है ए, ये चेंज होगा और ये बी रिमेन्स अनचेंज्ड। और सेम मान लो मेरे पास, मान लो फिर से कहीं पर है सी इक्वल टू ए बी की टाइप कोई कंडीशन है, एंड आई एम अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशंस, दैट मींस यही तीनों कोई कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये सी चेंज, ऑपरेशन ऑन सी, ऑपरेशन ऑन सी, सी तो चेंज होगा उस ऑपरेशन से, दिस ए रिमेन्स अनचेंज्ड, remains unchanged. This B operation, it will change. It will change via this column operation. That means whenever C equal to AB है, we are applying row operation, तो जहां पर दो मैट्रिक्स है उसमें पहली वाली मैट्रिक्स चेंज होगी, ऑपरेशन उस पर लगेगा, दूसरी मैट्रिक्स जो बाद वाली है that will remain unchanged. और C equals to AB में अगर we are applying the रो ऑपरेशन है तो फर्स्ट, बस ये ध्यान रखना, रो ऑपरेशन है तो फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगी, जो जहां पर दो मैट्रिक्स है, सिंगल वाली चेंज होगी होगी दोनों में, यहां भी चेंज होगी वहां भी चेंज होगी। बट अगर इफ आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन दैट मींस द फर्स्ट मैट्रिक्स विल चेंज। इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशन, इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशन, इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशन द सेकंड मैट्रिक्स दिस विल चेंज, दिस विल बी ऑपरेटेड, इसमें ऑपरेशन लगेगा, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें ऑपरेटेड, ए ऑपरेटेड एंड बी अनचेंज्ड। ये बात समझने वाली है इसके अंदर, रो लगा रहे, कॉलम लगा रहे। अब हम क्वेश्चन करते हैं पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एक, वी आर डूइंग वन क्वेश्चन बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वन क्वेश्चन। तो आई एम डूइंग वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 2 3 5 7, आई एम टेकिंग, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स ए, find A inverse, find A inverse using elementary operation। अगर elementary operation लिखा है तो I can use, if elementary operation is there तो I can use any means to say either row or column। पहले हम रो कर रहे हैं, कॉलम पे उसके बाद में आएंगे। अगर एलिमेंट्री रो लिखा है तो रो से ही करना है, एलिमेंट्री कॉलम लिखा है तो कॉलम से ही करना है। बट अगर एलिमेंट्री लिखा है तो वी कैन यूज ईदर रो और कॉलम, बट कॉलम लिखा है तो कॉलम से ही करना पड़ेगा। हमने लिखा है यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, ईदर रो और कॉलम। तो पहले हम रो वाला सीखते हैं। करना क्या होता है, सो बेसिक फंडा ये होता है, मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो हम करेंगे क्या, आई विल स्टार्ट राइटिंग ए इज इक्वल टू आई ए, जो कि होता भी है कि किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे वही मैट्रिक्स मिलता है। आई विल राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड द ए इज 2 3 5 7 is equal to, identity is 1 0 0 1, identity of that order which the question is, identity of that order which the question is, और into में इस a को I am writing only a। now I will apply the row operation। when I will apply the row operation, why I have written this a as only a, not this, because when I will apply the row operation तो this will be changed। जब रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये दोनों जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है इसमें पहले वाला चेंज होगा, दूसरे वाला चेंज नहीं होगा, तो ये ए का ए ही चलता रहेगा एंड तक। इसलिए मैंने बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, आई इंटू ए है। व्हेन आई विल अप्लाई द ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन कैसे लगा रहे हैं बता रहे हैं, व्हेन आई विल अप्लाई द ऑपरेशन दैट मींस दिस ए विल रिमेन अनचेंज, ये ए का ए रहेगा क्योंकि ये बाद में है। जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है उसमें पहले वाला चेंज होगा, सेकंड वाला चेंज नहीं होगा। तुम चेंज चेक भी कर सकते हो, ऑपरेशन लगाओ और फिर जो यहां पर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट मैट्रिक्स। अगर तुमने उसको भी चेंज कर दिया उसी ऑपरेशन से तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यू विल नॉट गेट दैट मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन लगाना कैसे है, पर्पस क्या, आप सुनो। ऑपरेशन लगाना कैसे है, तुम्हें जैसे 2/2 में ए बी सी डी ये मैट्रिक्स मिली है तुम्हें, ए बी सी डी दिस इज द 2/2, वी आर डूइंग अ क्वेश्चन फॉर 2/2, 3/3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, पहला स्टेप हमें करना, मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स को बनाना है 1 0 0 1, ऑपरेशन लगा लगा के, ऑपरेशन लगा लगा के व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ठीक है, मतलब मुझे इसको करना है, फंडा सुन लो क्या है, मुझे इसको करना है 1 0 0 1, ये बनाना है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये करते करते ये अपने आप चेंज हो जाएगा,
ये करते करते जब ये करेंगे तो ये अपने आप कुछ भी और बन जाएगा, ठीक है, और इनटू में ए आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो साथ में ए के आ रहा है ये क्या होगा, इसकी का इनवर्स होगा। भाई किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ही तो आइडेंटिटी मिलता है। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि ए इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे, ऑपरेशन लगाते लगाते इस वाले ए को चेंज कर देंगे आइडेंटिटी में। कैसे लगा रहे हैं देख रहे हैं अभी, और ये वाला अपने आप चेंज होगा। तो यहां पर जो आंसर मिलेगा मैट्रिक्स इनटू ए इज आइडेंटिटी, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए के साथ वो क्या है, उसका इनवर्स है। ये तो बेसिक फंडा है। करना कैसे कर रहे हैं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यहीं पर करना है। नाउ उसके लिए स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इसको 1 बनाएंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। उसके बाद इसको बनाएंगे 0, इसको बनाएंगे 0 इसकी हेल्प से। फिर आई विल मेक दिस 1, देन आई विल मेक दिस 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। यहां पर अप्लाई करते हैं, देखो तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले नंबर स्टेप 1 आई हैव टू मेक दिस 1, और 1 बनाने के लिए मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा। बट आई विल डू, इस 2 को 1 बनाना है तो आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन 2 का 1 कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड। तो R1 goes to half R1। अगर मैं इस 2 को 1 बनाना है, सबसे पहले मुझे ये 1 बनाना है, इसको पहले 1 बनाऊंगा, फिर उसको 0 बनाऊंगा, फिर उसको 1 बनाऊंगा, फिर उसको 0 बनाऊंगा। R1 goes to half R1, तो अप्लाई द ऑपरेशन। तो आई विल गेट 1 3/2 R2 में नो चेंज। ऑपरेशन R1 पे तो ये R1 है, दिस इज R1, तो 2 का हाफ हो गया 1, 3/2 के 3/2, दिस इज 5, दिस इज 7। मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब यहां भी ऑपरेशन लगेगा, तो 1 इंटू हाफ हो गया हाफ, 0 इंटू हाफ हो गया 0, R2 रिमेन्स अनचेंज, 0 1 मल्टीप्लाइड बाय ये ए का ए ही रहेगा, यहां पर कोई ऑपरेशन नहीं है क्योंकि जब भी रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स में लगेगा। कॉलम लगता तो बाद वाली पे लगता। ये आ गया। अब पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है मैं इस वाले को बनाऊंगा, इस एलिमेंट को आई विल मेक 0 विद द हेल्प ऑफ दिस 1। जिसको मैंने 1 बनाया उसकी हेल्प लेंगे हम। कैसे हेल्प लेंगे वो सुनो। देखो ये एलिमेंट किस रो के अंदर है, R2 के अंदर है, तो ऑपरेशन लगेगा R2 के ऊपर। R2 goes to R2, R2 goes to R2। जिसको 0 बनाना है और जिसकी हेल्प से बनाना है, जिसको 0 बनाना है जिसकी हेल्प से बनाना है, अगर उन दोनों का साइन सेम है तो बीच में माइनस आएगा, और अगर उन दोनों का साइन ऑपोजिट है तो बीच में प्लस आएगा। अब R2 में क्या माइनस करें, जैसे ये 1 है, यहां पर 1 ही होगा हमेशा। जब भी हम इसको 0 बनाएंगे तो 1 की हेल्प से ही बनाएंगे, तो वहां पर 1 ही होगा। तो सिंपली अगर मैं इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसको, R1 को, क्योंकि पूरी की पूरी रो मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन लगा। फिर सुनो क्या किया, R2 दिस 5 जिसको 0 बना रहे हैं, जिसकी हेल्प से बना रहे हैं, उसमें साइन क्या है, सेम, तो बीच में आ गया -5 टाइम्स R1, तो R2 goes to R2 -5 टाइम्स R1 आ गया। नाउ दिस विल गिव मी व्हाट, R1 रिमेन्स अनचेंज्ड। अब R2 -5 R1, तो R2 क्या हो गया, 5 -5 0। अभी आ गया 7, रफ में करना है काम, 7 -5 into 3/2, 7 -5 into 3/2, 5 into 3/2, तो 7 -15/2, 14 minus का 1/2, so I will write here minus का 1/2। I will apply the operation here also, तो what I will get, R1 तो no change, R1 में no change, now R2 0 -5 into 1/2, तो माइनस का 5/2, then 0, then 1 -5 into 0 will be 1 into A. This we have got. Now let us continue this here. I have got this. Now what I have to do, I have to make this 1. पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप, and now this I have to make this 1। अब ये क्या है, -12, माइनस जब 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 का 1 कैसे बना, डिवाइड बाय 2, दैट पर्टिकुलर रो। अब ये है R2 के अंदर, तो अप्लाई द ऑपरेशन, R2 goes to -12 का 1 कैसे बनेगा, -2 टाइम्स R2 कर दिया मैंने, इस R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स R2 goes to -2 टाइम्स R2 will give me R1 remains unchanged। Now R2, 0 into -2 will be 0, -1/2 into -2 is +1, for which we have applied the operation, is equal to, apply the string operation here, R2 पे, तो R1 remains unchanged। Now -5/2 into -2 is +5, and 1 into -2 is -2, this multiplied by A। अब चौथा और लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको 1 बनाया, सेकंड स्टेप इसको 0 बनाया, थर्ड स्टेप इसको 1 बनाया,
First step, second step, third step. First step, second step, third step. Now fourth step, I will make this 0 with the help of this one. 0 बनाने में हम 1 की ही हेल्प लेंगे. तो ये है R1 के अंदर. तो R1 goes to R1. जिसको 0 बनाना है और जिसकी हेल्प से बनाना है उन दोनों का साइन सेम है, तो बीच में माइनस आएगा. और जैसे यहां पर 5 टाइम्स किया था, अब यहां पर होगा 3/2 टाइम्स, लेकिन R2 होगा क्योंकि 1 यहां पर R2 के अंदर है. ये अप्लाई करेंगे तो आई विल गेट हियर 1 0 0 1. डेफिनेटली विल गेट दिस. नाउ अप्लाई दिस ऑपरेशन हियर, तो आई विल गेट R1. तो यहां करते हैं रफ में हाफ माइनस 3/2 इंटू R2, हाफ माइनस 3/2 इंटू 5, दैट इज हाफ माइनस 15/2. तो 1 माइनस 15/2 माइनस 7 आ गया. दिस इज माइनस 7. दिस विल बी माइनस 7. नाउ 0 माइनस 3/2 इंटू माइनस 2. 2 से 2 कैंसिल. 0 प्लस 3 विल बी 3. यहां आ गया 3. सॉरी यहां नहीं, यहां क्योंकि ऑपरेशन R1 पे यहां आएगा 3. सॉरी हाफ ये आ गया. हाफ माइनस 3/2 इंटू 5, 0 माइनस 3/2 इंटू माइनस 2 ये आ गया. और R2 रिमेन्स अनचेंज्ड 5 एंड माइनस 2 into me. Now what I will get, I have got that this is the matrix I. That means I am writing this identity matrix is equal to this. This implies that A inverse is nothing but -7 3 5 and -2. This is A inverse of this particular matrix. This is A inverse. If I will multiply this A inverse, आंसर चेक करने का तरीका. If I will multiply this A inverse with the question, I will get identity. आंसर चेक करने का तरीका है. आंसर कहीं गलत आया, कहीं कुछ गलत लग गया हो. If I will multiply this inverse which I have got with A, I will get identity definitely. Otherwise the answer is wrong. Because this is inverse multiplied by A. Inverse multiplied by A will give me the identity matrix. This is the method. So main thing is that if we are having A, B, C, D, make this 1, then this 0 with the help of 1, then this 1, then this 0 with the help of this. This is the main funda for 2/2. We have done only one question today. How to apply the operation. Multiply कैसे करना है, फिर ये ऑपरेशन कैसे लगाना है. Ri goes to Ri plus minus constant times Rj. 2 बार लगेगा ये. We'll do 2/2 question tomorrow also, and then 3/3 also. We'll do the question 2/2 as well as 3/3 tomorrow. This is the example for 2/2 only for row operation. Now we will understand the column operation also, which we'll do in next video. कॉलम ऑपरेशन भी करना है, देन रो ऑपरेशन का एक क्वेश्चन और करेंगे 2/2 को, फिर 3/3 में भी करना है इनवर्स निकालना. तब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा. हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2 और 3/3, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम, whatever it is. So with that we'll do in next class. Okay, thank you.